Hi guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So here is the third episode of Human Figure series. I know it took a little bit of extra time to upload this episode, but trust me, it is going to be worth it. Today we will talk about how to make any human posture in the examination without any reference, that is completely via your imagination. So without much introduction, let us get started. Alright guys, so let's start with our topic for today. So today we are going to learn how to make different angles of human body. तो उसके बारे में बात करते हैं, but before than that, let's recap once that what we have already done till now. So in the first episode, I told you that how to make the front postures, both male and female, and how to make the muscles, right? In the second episode, I told you how to make the side postures, both male and female, and back का मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं because it is not that difficult, बहुत ही ज़्यादा easy है and it is very similar to the front posture. तो वो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता दूंगी and let's recap what we have already done. So first we learned how to make a skeletal posture. So as you know that human body is divided into 8 equal parts, right? So the first part is for the head. If you talk about second part, we make the shoulders there. Third part में आपका chest पूरा area complete हो जाता है. So this is the entire form for the chest area, which is like a trapezium, right? Then you come to the lower pelvic region, which is in the fourth part. Then again it's a trapezium like this, and in the fifth part you make a triangle like this. ठीक है, तो ये आपका second form आ गया, which is the lower waist or lower pelvic region, you can say. Okay, and then you can see that this thigh area, then there's a calf area. थाई एरिया जितना होगा उतना ही आपका नी टू एंकल भी होगा, तो ये दोनों आपके सिमिलर रहेंगे. एंड देन यू हैव शोल्डर टू एल्बो, एल्बो टू रिस्ट. नाउ शोल्डर टू एल्बो एंड एल्बो टू रिस्ट इज ऑल्सो द सेम इन लेंथ, एंड देन यू हैव द वेस्ट वेयर द एल्बो विल कम. ठीक है, तो ये था आपका स्केलेटल पॉस्चर. सेम फॉर मेल ऑल्सो, नथिंग डिफरेंट. फॉर साइड पॉस्चर आप देख सकते हो, फर्स्ट यू हैव टू मेक द स्पाइन. तो आपका जो थर्ड एरिया है, तो थर्ड पार्ट होता है, उसके ऑलमोस्ट थोड़ा सा लाइक मिडिल में तो नहीं, मिडिल से थोड़ा नीचे देयर इज द सेंटर पार्ट ऑफ आवर लाइक बॉडी. तो सेंटर ग्रेविटी यहाँ पे होता है, एंड दिस इज द एरिया विच यू हैव टू मेक लाइक दिस, ओके, फॉर द स्पाइन. एंड देन हियर यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ ओवल, एंड हियर लाइक दिस फॉर द चेस्ट एरिया. बेसिकली एक सी शेप की डायरेक्शन में आपका पूरा का पूरा साइड पॉस्चर रहता है, एंड देन यू सिंपली हैव टू लाइक मेक इट, यू नो, एक बॉडी का शेप आपको इसके पास देना होता है, मसल्स बनाने होते हैं बेसिकली, राइट? सो इन द सेकेंड स्टेप यू मेक द मसल्स ओवर हियर. ठीक है, तो ये देखो आप, ऐसे आपके मसल्स आ जाएंगे. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू मेक, राइट? तो आप देख सकते हो कि जो आपका फ्रंट पॉस्चर है वो तो आपने सीखा हुआ है, बट बैक में कुछ डिफरेंट नहीं है. बस आपके 2 सर्कल से बट एरिया का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, एंड देन अदर एवरीथिंग इज द सेम. ओके, अ लिटिल बिट लाइंस फॉर डिनोटिंग द बैक एरिया, जो इस तरीके से है मसल्स, दैट्स इट. तो बैक में कुछ है नहीं, तो आपको सारा पता चल गया है दैट फ्रंट से एक ह्यूमन बॉडी कैसी लगती है, साइड से कैसी लगेगी. इफ आई जस्ट like eliminate this skeletal posture, then you can see over here that this is the muscle structure of the body. Okay, and after that if you want to do the shading part also, then in the shading part the entire body starts to come very very realistically. So if in the examination it is required for you, बहुत पास अगर आप कुछ बना रहे हो तो आप उसमें थोड़ा बहुत शेडिंग भी कर सकते हो, it will give a very realistic effect. But clothes के पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे. इन एपिसोड 4 आई विल टेल यू हाउ टू मेक द क्लोथ्स ऑल्सो. आपको जिस भी टाइप के क्लोथ्स बनाने हैं, जैसे भी बनाने हैं, वो आप कैसे बना सकते हो, दैट आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट एपिसोड. बट अभी के लिए आपको ह्यूमन बॉडी को एज इट इज पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड द प्रपोर्शंस, और आप जिस भी टाइप का क्लोथ बनाना चाहो आप बना पाओगे. अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी, एंड सिर्फ आप कुछ ही सर्टन टाइप ही सीख पाओगे अगर आप डायरेक्ट क्लोथ्स के साथ सीखोगे ह्यूमन बॉडी को. ठीक है, नाउ आफ्टर यू आर डन विथ द front, side and back, now you have to understand that how to make any angle. तो उसके बारे में बात करते हैं. It's very interesting. So here I will tell you 4 concepts. Please remember these 4 concepts that I'm going to tell you right now. इससे आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है, first is going to be द सेंटर लाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तो हर ह्यूमन बॉडी का ना एक सेंटर लाइन होता है. फॉर एग्जाम्पल कि आप उसको किस तरीके से कर्व कर रहे हो. जैसे कि अगर आप इस बॉडी की बात करो तो इसकी जो आपकी बॉडी का कर्व जा रहा है वो इस तरीके से जा रहा है, लाइक दिस.
इस बॉडी का भी इस तरीके से जा रहा है, इस बॉडी का इस तरीके से जा रहा है, और इसका इस तरीके से जा रहा है, राइट? सो देयर इज अ प्रॉपर कर्व टू एवरीबॉडीज बॉडी. एंड इवन इफ आई टॉक अबाउट सम रेफरेंस इमेजेस, फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू दिस इमेज ओवर हियर, तो आप देख सकते हो कि जो प्रॉपर बॉडी का कर्व जा रहा है वो जा रहा है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, राइट? So this is the first step. So you have to decide yourself only. If I show you some other images as well, so here you can see that the curve of the body is something like this. So it's not necessary that it will be straight. आप अपना स्पाइन को कैसे भी मूव कर सकते हो ना, ऐसे मूव कर सकते हो, ऐसे मूव कर सकते हो, थोड़ा सा ऐसे मूव कर सकते हो, या बिल्कुल भी ऐसे भी मूव कर सकते हो, ऐसे भी मूव कर सकते हो, राइट? क्योंकि फिर आपका यहाँ हेड आ जाएगा, यहाँ पे बॉडी आ जाएगी, यहाँ पे फिर ऐसे जगह, फिर यहाँ लेग्स आ जाएंगे, समझ रहे हो? तो the spine can be in any direction, and this direction you have to decide first for the upper body. Legs you can decide later. So for the upper body you have to decide the direction first. अगर आपको इतना clear हो गया है first step, so let's move on to the second step, which is going to be understanding that what is the flexible area. ठीक है? फ्लेक्सिबल एरिया की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. फ्लेक्सिबल एरिया क्या होता है? फ्लेक्सिबल एरिया होता है जो, देखो, फ्लेक्सिबल वर्ड यू ऑलरेडी नो. सो इफ यू टॉक अबाउट दिस चेस्ट एरिया इज नॉट बेंडेबल. लाइक आप इसको बीच से इसी पॉइंट से या इस पॉइंट से, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट योर एल्बो, यू कैन लाइक लिटरली बेंड योर आर्म फ्रॉम दिस जॉइंट, राइट? बट इफ आई टॉक अबाउट कि आप इस पार्ट को बीच से यहाँ से बेंड करो, ऐसे तो नहीं कर सकते ना. सो आवर आर्म, like this part of our arm is not flexible, it's not bendable, it's fixed. आप इसको सिर्फ रोटेट कर सकते हो, बट आप इसको ना तो फ्लेक्सिबल है ये, ना तो बेंडेबल है, समझ रहे हो? बट आवर चेस्ट एरिया इज नॉट फिक्स्ड, इट इज अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल. फॉर एग्जाम्पल दैट इफ यू वांट, यू कैन मेक द चेस्ट एरिया लाइक दिस ऑल्सो, लाइक दिस ऑल्सो, ओके, एंड लाइक दिस ऑल्सो. तो मतलब आप अपने चेस्ट एरिया को अलग अलग तरीकों से बेंड तो नहीं, बट इट्स जस्ट फ्लेक्सिबल. तो थोड़ा बहुत इसका पॉस्चर चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा हो सकता है, फर्स्ट की तरह ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ मतलब ऐसा भी हो सकता है, समथिंग लाइक दिस. सो यू नो इट डिपेंड्स दैट आपको कैसा अपना अपर बॉडी बनाना है. सो दैट इज अ स्टडी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द बेंडेबल एरिया, कि कौन कौन से एरिया से आप बॉडी को बेंड कर सकते हो. सो फर्स्ट वी अंडरस्टूड द सेंटर लाइन, नेक्स्ट वी अंडरस्टूड द फ्लेक्सिबल एरिया, देन वी अंडरस्टूड द बेंडेबल एरिया. ठीक है? बेंडेबल एरिया क्या होता है? जो भी पॉइंट है जहां से आप बॉडी को बेंड कर सकते हो. फर्स्ट इज दिस पार्ट, देन इज इट्स दिस जॉइंट, देन इट इज नीज, दिस वन. ठीक है? फिर यहाँ से भी, यहाँ पे भी जॉइंट्स होते हैं, आप यहाँ से भी बेंड कर सकते हो. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आप इस पार्ट से भी अपनी बॉडी को बेंड कर सकते हो, वेयर वी हैव नॉट मेड एनीथिंग. सो दीज आर दी बेंडेबल एरियाज. यू ऑलरेडी नो दैट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पॉइंट इट आउट. कौन से एरियाज बेंडेबल है वो आपको पता है ऑलरेडी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. बट जब आप स्केच बनाओगे तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि कौन से एरियाज बेंडेबल हैं, कौन से एरियाज बेंडेबल नहीं है. एंड जो बेंडेबल एरिया वेस्ट वाला होता है, दिस इज द मेन थिंग, बिकॉज इफ यू गेट दिस राइट, योर एंटायर पोज एंड postures and everything will go right. So what is the thing over here is that if you are making this area like this, you know, the chest area like this, okay, then you are making this लोअर वेस्ट रीजन लाइक दिस. तो जब यहाँ की आप बात करो ना, ठीक है, अब नॉर्मली क्या चल रहा था, इफ यू टॉक अबाउट दिस पार्ट ओवर हियर, नॉर्मली क्या चल रहा है, यहाँ पे है चेस्ट एरिया, यहाँ पे है, तो दोनों तरफ गैप है, इधर भी गैप है एंड हियर ऑल्सो दिस अ गैप. बट द मोर क्लोज यू ब्रिंग द वन पार्ट, सपोज आप इस तरफ से इसको पास लेके आए, ठीक है, तो इस तरफ से ये अवे जाएगा, ठीक है ना. एंड इसका जो मेन पॉस्चर है ये तो यही रहेगा, बट इसका थोड़ा डायरेक्शन चेंज, लेकिन थोड़ा टिल्ट हो गया लाइक दिस. Okay, earlier it was straight, now it is tilted, but the main form is the same. ये भी सेम रहेगा, क्योंकि ये कोई बेंडेबल एरियाज तो है नहीं, बीच में से बेंड हो नहीं सकते. थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा बहुत आप इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हो, दैट्स इट. ठीक है? तो मेन फॉर्म्स तो यही रहेंगे, और बीच में से अगर आप यहाँ से पास ला रहे हो तो यहाँ से अवे जाएगा, ठीक है, और अगर इस तरफ से पास ला रहे हो तो इस तरफ से अवे जाएगा. दैट्स द थिंग you need to remember for the upper body. Okay, and lastly is the proportions. If you get all these 4 points right now, your entire sketch will come out to be right, and you can make anything from your imagination.
तो अब प्रपोर्शंस क्या होते हैं ध्यान से समझो। अब आपको पता है कि नॉर्मली, लेट मी इरेज दिस, इफ यू नो दैट नॉर्मली द आर्म एरिया इज दिस लॉन्ग, ओके, सो यू नो कि ठीक है अगर मैं यहाँ पे आर्म बनाऊंगी तो वो इतना लंबा आएगा। तो अगर आप यहाँ पे भी आर्म बनाओगे इस तरीके से और शोल्डर की डायरेक्शन ऐसे चेंज कर दिया आपने, ठीक है, तो हियर ऑल्सो आर्म एरिया विल बी दिस मच ओनली। ऐसा नहीं कि शोल्डर की डायरेक्शन चेंज होगी तो आर्म एरिया बहुत लंबा हो जाएगा या बहुत छोटा हो जाएगा। तो इट इज नॉट अबाउट दैट ये वेस्ट तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इट्स अबाउट दिस प्रपोर्शन दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, अगर आप यहाँ से भी देखो तो ये आपको पता है कि जितना आपने ये बनाया है ए, उतना ही द बी विल ऑल्सो बी देयर। सो यू नो दैट ए इज इक्वल टू बी एंड देन यू आर मेकिंग दिस आर्म एरिया अकॉर्डिंगली, राइट। देन जितना आपका शोल्डर टू एल्बो है उतना ही आपको एल्बो टू रिस्ट भी बनाना है, ठीक है। देन ओवर हियर ऑल्सो दिस एरिया टिल द नी विल बी इक्वल टू दिस एरिया, तो ये भी आपको पता है। और थाई एरिया कितना बड़ा होगा ये भी आपको पता है। तो जो ये थाई एरिया है पूरा का पूरा, ये आपकी इंटायर बॉडी के हाफ का जितना होगा, ठीक है। सो इफ यू आर मेकिंग द अपर बॉडी लाइक दिस, you know the thigh area will be this much in size. So you need to understand the proportions in that sense, you know, कि ये कितना बड़ा होना चाहिए था एरिया। तो अगर आपको पता है कि ये एक लाइन है तो आपको पता है कि थाई एरिया का लाइन इतना होना चाहिए, समझ रहे हो। सो दिस लाइन ए शुड बी इक्वल टू लाइन बी, दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप यहाँ पे भी बना रहे हो बॉडी इस तरीके से तो आपको पता है यहाँ तक अपर बॉडी है ये पूरी, तो ये आपको अगर समझ नहीं आ रहा ना कि थाई कितना बड़ा बनाना है, इतना बड़ा बनाना है, ऐसे बनाना है, कैसे बनाना है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है दैट दिस लाइन A should be equal to this line B। तो थाई एरिया आपका इतना आएगा, सिंपल, A और B इक्वल होने चाहिए, दैट्स इट। मतलब आप आइडिया तो लगा सकते हो ना कि ये जो लाइन आपकी यहाँ पे है ये और ये इक्वल है ऑलमोस्ट लाइंस, तो बस दैट्स इट एंड यू गेट द प्रपोर्शंस राइट। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और फिर जितना बड़ा आपने ये बनाया उतना बड़ा फिर आप ये भी बना दो, ठीक है, दोनों सेम बना दो, दैट्स इट। देन ये भी आपको पता है कि कितना आना चाहिए, फिर ऐसे बना दो, सिंपल। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू गेट राइट। And once you get all these things right, you're just going to get a proper skeletal figure। उसके ऊपर आप muscles को बनाएं like this and your entire sketch is ready। muscles आपको मैंने already बता ही रखा है। if you don't know how to make muscles then please go and watch my episode 1 and episode 2 videos। it will be very helpful for you because you will know कि कहाँ पे आपके stomach muscles आएंगे, कहाँ पे आपके lower pelvic muscles आएंगे, ठीक है, कहाँ पे आपके breast muscles आएंगे, ये कहाँ पे आपके थाई मसल्स आ रहे हैं, कहाँ पे काफ आ रहा है, सब आपको मिल जाएगा। एंड देन यू जस्ट नीड टू फाइनलाइज इट। Okay, I hope you're enjoying this video guys, but if you really want to crack the NID, NIFT and UCEED entrance examinations then YouTube videos are not going to be enough for you। Often students think that हम YouTube से ही पूरी preparation करेंगे, self study करेंगे and we will become the next topper, but often students don't understand that how to prepare for these entrance examinations and they think that self study is going to be enough, but you have to understand now that everybody is going to watch this video, everybody is going to practice with this video and everyone is watching all the other videos on YouTube as well। So how will you become the topper? सब लोग तो YouTube पे वीडियो देख रहे हैं ना, आपने क्या यूनिक कर लिया या डिफरेंट कर लिया? In order to become a topper, you have to do something different and unique that you already know. If you want to create a perfection level in your sketches in a short period of time, because you only have a few months to prepare, you don't have years and years to prepare, right? So you will have to understand these techniques in more depth। आज जो मैंने बताया आपको वो सिर्फ एक overview होता है because this is YouTube video, बहुत जल्दी इसको complete करना होता है। And second very important point is that you have to understand the corrections in your sketches individually also। अगर आप खुद के अपने स्केच में करेक्शंस नहीं देखोगे तो आप बार बार वही मिस्टेक करते रहोगे till the examination and you will not know that where you lost your marks। So only understanding the techniques in a good way is also not enough। This video should act as a guide for you that how structured our way of teaching is and how different it is from other institutes। But of course I'm not saying you to directly enroll in our classes, rather book a free demo class and see it for yourself। You can call or WhatsApp us on this number which is 8829088615 और you can also directly book from our website। तो जैसे आप वेबसाइट खोलोगे तो वहाँ पे बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन आता है, वहाँ पे आप अपने डिटेल्स को रजिस्टर करो एंड देन यू कैन डायरेक्टली बुक अ
free demo class for yourself, right? All our classes are held between 8 PM to 10 PM क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट completely online है, because by that time you're already done with your school and tuitions. हर क्लास रिकॉर्डेड होती है. Every class backup recording is provided to you. Also because we are completely online, our way of teaching is very, very smart. We teach through presentations, 3D models, and often I use my iPad जिससे मैंने ये वीडियो भी शूट करी है, तो काफ़ी क्लैरिटी मिलती है टेक्निक्स को समझने में. एंड ऑल्सो इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट प्रिपेयर फॉर द NID NEFT एंड UC एंट्रेंस एग्जामिनेशंस थिंकिंग दैट अरे हम कैसे जा पाएंगे दूर, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, ऑलरेडी वी आर हैविंग आवर बोर्ड एग्जामिनेशन, स्कूल्स, ट्यूशंस. बट यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और एग्जामिनेशन भी क्रैक हो जाएगा. सो गाइज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में कम ही मिलती हैं एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़ इन द राइट टाइम. सो इफ़ यू रियली वांट टू बिकम द नेक्स्ट टॉपर, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है. बुक अ फ्री डेमो क्लास फॉर योर सेल्फ राइट नाउ एंड डोंट मिस योर चांस टू क्रैक द NID NEFT और UC एग्जामिनेशन दिस ईयर. तो जल्दी से मैसेज, कॉल या फिर वेबसाइट से अपनी डेमो क्लास को बुक करो एंड लेट अस कंटिन्यू विद द वीडियो. सो नाउ आई विल मेक वन स्केच इन रियल टाइम, बिकॉज अगर मैं हर स्केच रियल टाइम में बनाऊंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी. सो आई एम जस्ट गोना मेक वन स्केच इन रियल टाइम एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू मेक. आई एम जस्ट गोइंग टू रैंडमली डिसाइड कि मुझे क्या बनाना है एंड देन यू टेल मी कि आपको समझ आया कि नहीं. सो फर्स्ट आई नीड टू डिसाइड एंड आई नीड टू डिसाइड समथिंग फॉर द अपर बॉडी. तो सबसे पहले आप एक कर्व डिसाइड करिए इस तरीके से. सपोज मुझे अपर बॉडी ऐसा रखना है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता है दैट इफ दिस इज द अपर बॉडी देन जो लोअर बॉडी होगा वो कहीं मतलब यहाँ तक आएगा, बिकॉज अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी इज द सेम, राइट? देन यू हैव टू डिवाइड दिस इनटू हाफ, okay, further half and further half. Now you know that we have 4 parts. In the first part, tell me what it is. Yes, it is going to be the head, right? तो हेड पार्ट आपको पता है. चलो मैंने हेड का डायरेक्शन ऐसे बना दिया, थोड़ा नीचे की तरफ, ठीक है. अब मुझे पता है कि ये मेरा नेक एरिया है. अब मैं क्या करूंगी, शोल्डर टिल्ट कर दूंगी और यहाँ तक मुझे पता है कि वेस्ट एरिया, दिस इज द वेस्ट एरिया ओरिजिनली, राइट? बट वेस्ट से थोड़ा ऊपर ही हमें चेस्ट का पार्ट बनाना है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू like tilt it a little bit because it's flexible also ना, तो थोड़ा सा flexible भी है. तो मैं हल्का सा I'm going to just make it like this and here you already know what it is. First part is done. Then यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, from here I am taking it like this. But wait, I have to follow my center line also, which जो मैंने बनाया है. पर अगर आपको बीच में लग रहा है कि नहीं मुझे ये center line नहीं follow करना, I have to make something else, then you can change the center line also in between, राइट? बट सेंटर लाइन कोई होना जरूर चाहिए. तो फिर आपका जो बॉडी प्रपोर्शन है फिर ऐसे आ जाएगा, दैट हियर देयर माइट बी द लेग एरिया, देन हियर देयर माइट बी दिस लेग, एंड मतलब कुछ ऐसे कराटे टाइप का या कुछ ऐसे करके कोई खेल रहा है ना, तो इस टाइप का फिर पॉस्चर आ जाएगा. अंडरस्टूड? सो यू हैव टू डिसाइड योर एंगल्स ऑन योर ओन. आई डोंट नो व्हाट आई एम मेकिंग, बट जो भी आपको बनाना है यू हैव टू यूज द टेक्निक्स एंड दैट्स इट. तो अब आपको पता है कि आप एक तरफ से पास लेके आओगे. सपोज मैं इस तरफ से अगर पास लेके आ रही हूँ तो मुझे दूसरी तरफ से दूर लेके जाना है, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा सेंटर लाइन अब अपना चेंज करूंगी, जो मैंने ओरिजिनली डिसाइड किया था उससे. जो ओरिजिनल अगर रखना है तो फिर ऐसे आ सकता है, दिस माइट बी द ओरिजिनल वे. जो मैंने अगर इस सेंटर लाइन को फॉलो करना है तो इट विल बी मेड समथिंग लाइक दिस. तो आपको ये तो पता है कि ये चेंज नहीं हो सकता ब्रो, दिस इज गोइंग टू बी फिक्स्ड, ओके? सो हियर यू हैव टू मेक अ ट्रेपीजियम एंड देन बिकॉज यू आर फॉलोइंग द सेंटर लाइन लाइक दिस, तो ट्रायंगल अब इधर आएगा ऐसे. ये तो आपको पता है कि आपको ऐसे बनाना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, ओके? एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक द लेग्स एरिया. तो आपको जैसे भी बनाना है, सपोज यू वांट टू मेक इट समथिंग लाइक दिस. सो नाउ यू नो कि कितना बड़ा आना चाहिए था लेग एरिया. आप यहाँ से मेजर कर सकते हो, ठीक है? मेजर कैसे करोगे, सपोज इतना बड़ा होता ना आइडियली, तो आपको पता है कि आपको यहाँ पे भी इतना ही बड़ा बनाना है, ठीक है? आइडियल आपको पता है कहाँ तक था और फिर आप इजीली इतना बड़ा बना सकते हो. सो नाउ यू नो दैट टिल वेयर माई थाई मसल्स आर गोइंग टू कम, राइट? आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. इट्स अ वेरी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, बट मैं आपको जल्दी से ज़्यादा चीज़ें जल्दी से जल्दी समझाने की ट्राई कर रही हूँ. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन दैट इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो और नॉट, ठीक है? बिकॉज यूजुअली आई डोंट टीच दिस फास्ट. यूजुअली वी टेक टाइम एंड धीरे धीरे करके चीज़ों को डिस्कस करके, चीज़ों को लर्न करके ज़्यादा समझते हैं, ठीक है ना? Then you already know, the feet area is gonna come, the legs area are gonna come, तो वो सारी चीज़ें आ जाएगी.
I hope that you're able to understand, right? And then if I want to make the hand also, so also you need to know the original position. Original position क्या था, अगर hand रहेगा तो आपको पता है waist तक आएगा, ठीक है. You already know that it will come from here till the waist. So this was the original hand size, है ना. ओरिजिनल ये होना चाहिए. तो अगर हम यहाँ पे भी बना रहे हैं तो हमें इतना ही बड़ा बनाना है, समझ रहे हो. सो दिस ए शुड बी इक्वल टू दिस लाइन बी, दिस ग्रीन लाइन शुड बी द सेम, दैट्स इट. सो अगर आपको इतना पता चल गया तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा दैट टिल हियर आई हैव टू मेक द हैंड. यू विल नॉट मेक इट टू लॉन्ग और यू विल नॉट मेक इट टू शॉर्ट ऑल्सो, ठीक है. सो हियर यू कैन सी समथिंग लाइक दिस एंड देन देयर विल द palm area. Now after this thing is done, that's very easy for you. You simply have to make the muscles. तो मैं पूरे अभी बना के नहीं दिखा रही, ठीक है. मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगी सो दैट यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम. आपको जल्दी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक दिस अ लिटिल बिट लाइटर एंड देन क्विकली तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ. सो इट विल टेक मी लेस देन 2 minutes ऑनेस्टली. विथ प्रैक्टिस इट विल टेक यू लेस देन 2 minutes टू मेक गुड स्केचेस, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी डे, राइट. इफ़ यू थिंक कि हमने एक बार सीख लिया और एक ही बार प्रैक्टिस कर लिया तो हम बिल्कुल परफेक्शन लेवल पे आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है. जो भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं यू हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी सिंगल डे एंड यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस थ्रू रेफरेंस इमेजेस. वो भी मैं अभी आपको बात करूंगी उस बारे में, दैट हाउ टू प्रैक्टिस थ्रू रेफरेंस इमेजेस. सो हियर यू नो दैट देयर इज द लेग एरिया लाइक दिस, नीज, लेग्स, ठीक है. हियर ऑल्सो एग्जाम के लिए बिकॉज यू हैव टू मेक सिंपल पेंसिल स्केचेस, तो आई थिंक दिस मच विल ऑल्सो बी इनफ. बट ऑब्वियसली इन डिटेल भी हम इसके बारे में बात करते हैं इन आवर क्लासेस सो दैट आपको हर चीज़ समझ आए रिगार्डिंग द ह्यूमन फिगर्स, right? Then here you will make the arm area in the manner I've told you how to make the muscle. So you will make it in that manner only, okay? So you will make the arm area, then you will make this area over here, right? And here you can see that my final sketch is almost ready in some time only. So आपको जब प्रैक्टिस करोगे ना, आपको इसी तरीके से करना है. You don't need to practice it while completely like shading, because you already know कि अगर आप इतना कर सकते हो, if you can do this much for the examination, then you can do anything. Like in the examination अगर आप और टाइम दोगे तो आप और बेटर करते चले जाओगे, इससे कम बिलो तो नहीं जाएगा ना. So this is how you have to practice the human body figures, okay? Now you have to practice a lot of reference images also. So here you can see, if suppose you are practicing this reference image, तो आपको क्या करना है, that you don't have to like try to copy नहीं करना है. You have to use what I have taught you today. उसके मदद से, suppose that this is my entire body, okay? So first I have to make 2 divisions, upper body and lower body. Upper body into half, okay? Upper body into half, then half, and then further half. So you know that this is for the head area. यहाँ पे आपका chest area आएगा, यहाँ पे waist आएगा, ठीक है. फिर forms को identify करेंगे, that here, okay, this is the chest form which is something like this. Then here I have this form which is something like this, समझ रहे हो? And then you have to practice this part, okay? प्रैक्टिस कि यहाँ पे कैसा फॉर्म आएगा, यहाँ पे कैसा फॉर्म आएगा, ठीक है. लेग्स कैसे है, मसल्स के शेप कैसे है, दी स्मॉल कर्वेचर, स्मॉल लाइन्स, यू हैव टू नोटिस ऑल दैट. एंड फाइनली यू हैव टू नोटिस दैट व्हाट इज द सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी. ये भी फाइनली नहीं तो बहुत पहले ही नोटिस करना है, ठीक है. फिर आपको मसल्स वगैरह पे जाने हैं एंड देन डिटेलिंग करनी है. लास्ट स्टेप इज क्लोथ्स, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि क्लोथ्स के साथ कैसे प्रॉपर बनाना है. लेकिन अभी आपको यही प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इफ यू थिंक कि अभी आप डायरेक्टली क्लोथ्स के साथ बनाओ और पूरा परफेक्ट चले जाओ, ऐसा नहीं होगा. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्म, दैट फर्स्ट दिस पार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन दिस पार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देखो कैसे जा रहा है, अच्छा ऐसे बताया था तो इस तरीके से जा रहा है. Then the thigh area, thigh में अलग अलग टाइप के मसल्स आपको दिखेंगे in reference images, something like this or like this or like this. So that you have to understand through the reference images. Okay, now that you know all this, अब आपको क्या करना है, अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लो तो आपको फिर इमेजिनेशन से चीज़ों को बनाने की ट्राई करनी है आफ्टर रेफरेंस इमेजेस. ओके, सो दिस आई हैव लाइक ऑलरेडी शोन यू दैट हाउ टू डू इट. अगर आप ऐसे कुछ भी मतलब रैंडम ले लो, पहले आप ये वाला पार्ट प्रैक्टिस करेंगे, बेसिकली दिस पार्ट, दैट हाउ टू मेक दिस एरिया, हाउ टू मेक द
चेस्ट एरिया, लोअर पेल्विक रीजन, हैंड्स, प्रोपोर्शंस कैसे रहेंगे, उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करो जो मैंने आपको आज बताया है. एंड देन फाइनली यू कैन मेक द मसल्स एंड एवरीथिंग एंड मेक अ फाइनल स्ट्रक्चर. तो अलग अलग पोस्चर्स की प्रैक्टिस करो. आफ्टर दिस यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दी लाइव स्केचेस. तो आप लाइव स्केचिंग करो. अपने सामने कोई बैठा है, मम्मी पापा बैठे हैं घर में, भाई बैठा है, उसकी लाइव स्केचिंग करने की ट्राई करो. प्रपोर्शंस का ध्यान दो, देखो लाइव में कैसे कपड़ों के फोल्ड्स आ रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स. Okay, and then finally I will just quickly show you how to make these kind of postures. स्केच में देखो क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट है. इसमें मैंने लेग का जो प्रपोर्शन है ना, आई हैव केप्ट इट वेरी लॉन्ग एंड डिसप्रपोर्शनेट, बिकॉज फैशन इलस्ट्रेशंस वगैरह ऐसे बनती हैं. तो इसके बाद आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि आप थोड़ा बहुत प्रपोर्शंस चेंज करो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की भी, एंड ट्राई टू गेट एक्सट्रीम प्रपोर्शंस ताकि आपका एक स्टाइल भी बन सके. इट इज़ अनरियलिस्टिक, आई नो इट इज़ नॉट देयर इन रियलिटी, बट ये आपके स्केचेस में एक यूनिकनेस लाएगी और एक स्टाइल ला सकती है. तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्मल प्रपोर्शंस भी रख रहे हो, ठीक है, अपर बॉडी लोअर बॉडी, सो डिवाइड दिस इनटू हाफ देन हाफ देन हाफ 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 हाफ, यू ऑलरेडी नो दिस. तो आपको करना क्या है कि सपोज आपने अपर बॉडी बनाई तो बहुत पतला सा बना दो, ठीक है, ठीक है, फिर लोअर बॉडी काफ़ी बड़ी बना दो, ऐसे डिसप्रपोर्शनेट. आई नो दिस इज नॉट रियल, बट जस्ट फॉर अ स्टाइल, ट्राइंग टू आइडेंटिफाई योर स्टाइल, ट्राइंग टू सी कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं या आपको क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, वो आप ट्राई करो. या एक्स्ट्रा मस्क्यूलर बॉडी बनाओ जो कि नहीं होती है, वैसा ट्राई करो. कुछ इंटरेस्टिंग कुछ आप ट्राई करोगे तो आपको भी मज़ा आएगा सीखने में और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा देखने में. सो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, यू नो, एक्सप्लोर योर सेल्फ, ट्राई करो चीज़ें बनाने की. बट आई एम श्योर कि आपको समझ आया होगा कि मैं क्या टेक्निक आज आपको सिखाने की कोशिश कर रही थी. एंड ऑब्वियसली इन माई क्लासेस आई विल टेल यू अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स. मतलब ये तो कुछ भी नहीं है वीडियो, इसके अलावा मैं आपको बहुत 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 सारी चीज़ें अपने क्लासेस में बताऊंगी एक्स्ट्रा. इंडिविजुअल करेक्शन डिस्कशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पता है क्या होता है, इवन आफ्टर टीचिंग एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, बट स्टिल जब आप स्केचेस भेजोगे ना तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी. एज यू कैन सी ओवर हियर इन दिस स्केच, ये
स्टूडेंट को परफेक्ट ही लगेगा फॉर श्योर, उसे तो यही लगेगा कि दिस इज़ अ परफेक्ट स्केच दैट आई हैव मेड, बट इसमें प्रपोर्शंस की प्रॉब्लम है। अगर आप इस लेग को देखो तो ये वाला काफ़ी लंबा है, यहाँ पे समझ नहीं आता कि काफ एरिया कैसे बनेगा, काफ एरिया काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, ठीक है, हैंड थोड़ा सा छोटा हो गया है, ये वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा गया, तो there are these small mistakes that you will not be able to identify yourself, but well I will annotate it on the screen, and जब मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें थी जो थोड़ी बहुत आप सही कर सकते थे, यहाँ पे इस तरीके से ये मसल बनाना है, इस तरीके से चेस्ट बनाना है, तब जाके आप instantly like within 2 to 3 classes you start improving and you start making perfect sketches। and मैं खुद देख के कभी कभी हैरान हो जाती हूँ कि बच्चे इतनी जल्दी इतना अच्छा कैसे सीख जाते हैं। so it does happen in the live classes, this is just an overview, just a glimpse of what you will study in my classes। so obviously if you have not enrolled yet for my free demo classes, क्या कर रहे हो, मतलब भाई तुम्हें क्या टॉपर ओवर बनना नहीं है, मतलब इंडिया में बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी अगर आपको कहीं मिलेगी तो वो SSAC में ही मिलेगी। दैट इज़ माई गारंटी टू यू कि आपको इतने डिटेल में और इतनी मेहनत करके आपके हर स्केच में असाइनमेंट्स में करेक्शन बता के ड्राइंग कोई नहीं सिखाएगा पूरे इंडिया में। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है फ्री डेमो क्लास के लिए तो ज़रूर करो, आपको और भी ज़्यादा आइडिया मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे और भी डिस्कस करनी है, एक वीडियो में मैं सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो आज की वीडियो के लिए गाइज इतना ही, और thank you so much guys for watching the video. I hope you liked it and got to learn something from it. Don't forget to enroll in our free demo session. Usually the chances of success in other entrance examinations and other institutes is very less, but at SSAC I guarantee you that just work a little bit hard and be dedicated and you will become the next topper, trust me. But of course we work really hard for you guys, so if you're not serious about this then I would say that don't join, because we will also expect the same dedication फ्रॉम यू कि आप भी उतना ही सीरियस हो और आप भी उतनी मेहनत करो। तो अगर आप नहीं कर सकते हो या इस चीज़ के लिए इतने सीरियस नहीं हो तो आप मत ही ज्वाइन करना, ठीक है, क्योंकि तुमसे नहीं हो पाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।